और महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय की जन्म जयंती की उत्तर संध्या पर कला भवन के रूप में तकनीकी शिक्षा के वडोदरा में 125 वर्षों की पूर्णता पर कला नगरी के सभी कला रसिकों को एवं आदरणीय अतिथियों का बहुत बहुत स्वागत। यूनिवर्सिटी की परंपरा के अनुसार हम सभी यूनिवर्सिटी गीत के सम्मान में अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। सपना सारवनारा अमे ज्योत जलावी सृष्टि नावली सहसा सर्जनहारा। अमे वडोदराना विद्यापीठना सपना सारवनारा अमे ज्योत जलावी सृष्टि नावली सहसा सर्जनहारा। अमे गगन कुसुम कर धरनारा अमे मगन मगन कई फरनारा। अगन बात अमे भरनारा अमे दैन्य तिमिरने हरनारा। अमे वडोदराना विद्यापीठना सपना सारवनारा अमे ज्योत जलावी सृष्टि नावली सहसा सर्जनहारा। श्री सयाजी विद्यापीठना ज्ञानदीपने धरनारा। श्री सयाजी विद्यापीठना ज्ञानदीपने धरनारा। सत्यं शिवम् स्टाफ द्वारा प्रस्तुत यूनिवर्सिटी गीत ज्ञान दीप ने कर धरनारा। ज्ञान दीप के प्रकटन के लिए मैं विनती करूंगा हमारे प्रिंसिपल श्री डीएन पंचाल सर को कि वे हमारे वाइस चांसलर सर, डीन सर, वाइस डीन सर को, वाइस प्रिंसिपल सर को और आज के हमारे समारोह के अध्यक्ष श्री जगदीश मित्तल जी को, हमारे सहयोगी बैंक ऑफ बड़ौदा के डीडी सिंगला जी को, निद्रा से राजेश भेंडे जी को और जिनके लिए हम सब आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं वे सभी कवियों को हम मंच पर आमंत्रित करें। दीप प्रकट। शुभं करोति कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपज्योति नमोस्तुते। दीपज्योति नमोस्तुते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः।
तस्मै श्रीगुरुवे नमः। शुभं भवतु। हमारे आचार्य श्री DN पंचाल सर को मैं विनती करता हूं कि वे स्वागत प्रवचन करें। Good evening to all of you, and very warm welcome to celebrate 125th year of inception of Kala Bhavan. Respected Vice Chancellor Sir, respected General Manager Sri Singla Sir, General Manager BOB Sri Bhatia Sir, all the staff, other sponsors, invited poets, syndicate members, senate members, and invited guests and our students. I welcome you all on this occasion for which we have got a sound reason to celebrate. Journey of 125 years for any of the institution, if you see globally, that itself is a reason to celebrate. For any of the institution to survive, that to our teaching institution to survive for 125 years, that itself gives us a sound reason that we should always look back to our past and see our journey and decide our path ahead of us. कला भवन हम बोल सकते हैं एक विचारधारा थी. कला भवन was not only a building. In 1988, Maharaja decided and issued one circular in March or November 88 and started teaching a school of technical education in Baroda, where the education itself was very scarce. The institution had started and different schools to educate the people of Baroda state in the vernacular language itself was initiated. 6 to 7 different schools in the name of Yantra Shala, which was teaching mechanical and electrical engineering initially, and other branches also. Shilpa Shala, which was teaching carpentry, Shilp, fundamentals and of the building technology also, and architectural designs also, and to preserve our ancient way of architecture. Rangashala. This school basically was started as a dying division. Later on, it graduated itself in the weaving technology also and spinning technology also. It was an era when the natural dyes were being replaced by the synthetic dye, and very few people knew how to use those dyes. And the special school was started. I must say that many of the leading textile industries say Nasli Wadia's forefather was a student of this Shala, and later on they started Bombay dyeing, which is a giant concern today. Krushi Shala, a novel approach, where teaching the agricultural knowledge scientifically, and still it has got a model farm existing as its own sign. Shikshan Paddhati Shala, to prepare the authentic way of preparing the good teachers for teaching not only technical in all discipline, where we are finding the roots of that in our Faculty of Education and Psychology itself. Chitra Shala. Chitra Shala used to train not only for the painters, where sketching was being taught, sculpture was taught, authentic way of watercoloring by the way of the prominent, you can say, artists of Europe was adopted
even the oil color painting was also being done, photography was also taught, and even film technology was also taught in those days. You can understand. I must mention that Dada Saheb Phalke was a student of this Shala, and we are proud of that. Above that, Kala Bhavan had a Vyavahar Parignan Shala. These were the authentic name given. That used to teach student accounts and teaching the day-to-day English also. Even they were teaching fundamentals of economics, and above all, a care was taken that the students are also taught about the ethics. If technical persons are generated without ethics, they are becoming more dangerous. This was also sought in those days. We say that this system of education was highly flexible. And with this, we are just mentioning so that our invited guests are just becoming, you can say, knowledgeable about it. With this remark, I welcome you all for this celebration, which is not only marking only 125 years of this. Yesterday we had 125th year of birth anniversary of Srimant Maharaja Sayajirao Gaikwad also, and 125th year of Swami Vivekananda's Janma Jayanti also. Once again, I welcome you all for this. Thank you very much. शब्दों से स्वागत कर लिया, अब पुष्पों से स्वागत। आज के हमारे अध्यक्ष वाइस चेयरमैन अग्रोहा मेडिकल कॉलेज श्री जगदीश मित्तल जी का स्वागत करने के लिए मैं निमंत्रित करूंगा हमारे वाइस चांसलर सर प्रोफेसर योगेश सिंह जी को। यहीं से करेंगे, ठीक है। इस कार्यक्रम के सहयोगी बैंक ऑफ बड़ौदा से के प्रतिनिधि के रूप में जनरल मैनेजर श्री डी सिंगला जी का स्वागत करने के लिए मैं विनती करूंगा हमारे आचार्य DN पंचाल सर को। हमारे दूसरे सहयोगी निद्रा के जनरल मैनेजर राजेश भेंडे जी का नहीं उपस्थित, और उसके बाद हम जिनके लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं उनका स्वागत करेंगे, सभी कवियों का स्वागत करेंगे। उनके परिचय की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कवि कहते हैं कि शब्दों से ना दीजिए परिचय हमारा, शब्दों से ना दीजिए परिचय हमारा, शब्द हमारे देंगे परिचय हमारा। सबसे पहले श्री प्रताप फौजदार जी का स्वागत करने के लिए मैं VC सर से विनती करता हूं कि वे मंच पर उपस्थित हो और उनका स्वागत करें। कवि श्री सर आप दो जन सुदीप भोला जी का स्वागत भी
हमारे वाइस चांसलर सर ही करेंगे। मैं विनती करूंगा वाइस प्रिंसिपल पॉलिटेक्निक पीआर सेठ जी को कि वे राजेश चेतन जी का स्वागत करें। कवि श्री रसिक गुप्ता जी का स्वागत करने के लिए भी मैं पीआर सेठ सर को ही विनती करता हूं। वे धन्यवाद। मैं फैकल्टी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग के डीन सर श्री मिश्रा सर को मैं विनती करूंगा कि वे मंच पर उपस्थित हो और श्री रोहित शर्मा जी का वे स्वागत करें। सुश्री योगिता चौहान जी का स्वागत भी उर्मिल जी का स्वागत भी मिश्रा सर ही करेंगे। मैं अलबेला खत्री जी का स्वागत करने के लिए मैं प्रिंसिपल श्री डीएन पंचाल सर को विनती करता हूं। धन्यवाद। कला भवन, वेयर आर्ट मीट्स इंजीनियरिंग, आर्ट और इंजीनियरिंग का कॉम्बिनेशन जहां हुआ वो कला भवन। और सौभाग्य से आज हमारे वीसी सर भी कला और इंजीनियरिंग इनका कॉम्बिनेशन है। उनका काव्य प्रेम उनके हर वक्तव्य में हम देखते ही है और उनके काव्य प्रेम के कारण ही आज ये कार्यक्रम संभव हो सका है। मैं उनको विनती करता हूं कि वे उपस्थित हों। आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष माननीय जगदीश मित्तल जी, वाइस चेयरमैन अग्रोहा मेडिकल कॉलेज, अग्रोहा यूनिवर्सिटी सोलन, विभिन्न फैकल्टीज के डीन, सेनेट सिंडिकेट के माननीय सदस्य, आमंत्रित अतिथिगण, आज जो इतने देश के ओजस्वी कवि हमारे सामने आए हैं, मैं विश्वविद्यालय की तरफ से उनका स्वागत करता हूं। और मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मेरे मन में बहुत था कि एक कवि सम्मेलन विश्वविद्यालय में कराया जाए। पहले साल नहीं हुआ, दूसरे साल नहीं हुआ, तो मैंने कहा इस तीसरे साल तो करा लेना चाहिए। ऐसा
बहुत मन में था और मैं समझता हूं पॉलिटेक्निक ने उसमें सहयोग किया कि नहीं हम कराएंगे, तो मैं पॉलिटेक्निक के प्रिंसिपल का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इसमें सहयोग किया, और सभी पॉलिटेक्निक के लोगों का। कवियों का जो परिचय है वो तो बाद में राजेश चेतन जी कराएंगे, मैं उस पर नहीं जा रहा हूं, वो राजेश चेतन जी कराएंगे बाद में कवियों का परिचय सबका। लेकिन आज हमारे लिए बहुत गर्व सम्मान की बात है कि माननीय जगदीश मित्तल जी हमारे यहाँ हैं, और वो अध्यक्षता का हमने उनसे रिक्वेस्ट की तो उन्होंने इसको माना है, जो बहुआयामी प्रतिभा के धनी हैं। परिचय आज क्योंकि भाषण देने का बहुत वक्त नहीं है और मैं बहुत उस पर नहीं बोलूंगा, लेकिन यह है कि जिनको देखकर प्रेरणा मिलती है, जिन्होंने समाज के लिए, देश के लिए बहुत कुछ किया है, ऐसे जगदीश मित्तल जी हमारे बीच हैं। मैं उनका भी हृदय से स्वागत करता हूं विश्वविद्यालय के अंदर। ये एक हमारा प्रयास है, और जब मैं इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय में था, जब मैंने एक बार गलती से कहा था कि हमारा ये प्रयास है, तो राजेश चेतन जी ने बाद में बड़ी उसकी चुटकी ली थी कि इन्होंने कहा कि प्रयास है। मैं फिर से वही बात कह रहा हूं, हमारा एक प्रयास है कि एक अच्छा कवि सम्मेलन हो। कविता का भाव और कविता क्या है, कविता कैसे प्रेरणा देती है, कैसे जीवन बदलती है, कैसे संस्कार देती है, मेरे इन बच्चों को, हम सबको कहीं ना कहीं वो हंसाएगी भी, गुदगुदाएगी भी, प्रेरणा भी देगी, गुस्सा भी देगी, सब कुछ करेगी। ऐसी शक्ति जो कविता में है, आज हम उसका थोड़ा अनुभव करेंगे। प्रभु इन कवियों को शक्ति दे, आप सभी श्रोताओं को हिम्मत दे, इनको शक्ति दे, श्रोताओं को हिम्मत दे। ऐसी कामना करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। सयाजीराव के दो महान स्वप्न, बड़ौदा कॉलेज और बैंक ऑफ बड़ौदा, आज दोनों साथ साथ मिलकर इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा के प्रतिनिधि के रूप में आज हमारे साथ एक प्रतिभाशाली एवं अनुभवी बैंकर श्री डी सिंगला जी उपस्थित है। वे MSc, MBA, CIIAB उनका अभ्यास, 38 सालों से वे बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ कार्यरत है और देश विदेश की ब्रांचों में अनेक पदों पर उन्होंने अपनी सेवाएं प्रदान की है। मैं उनसे विनती करूंगा कि वे इस कार्यक्रम को शुभेच्छा देने के लिए यहां उपस्थित हो। आदरणीय श्री जगदीश मित्तल जी, आदरणीय योगेश सिंह जी वाइस चांसलर, और सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, आज यहाँ पे जितने भी लोग उपस्थित हैं वो मेरे को सुनना नहीं चाहते। सभी लोगों की आंखें और कान हमारे भाई जो यहाँ स्टेज पे बैठे हैं इनकी तरफ लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से आज इस कला भवन के 125 वर्ष पूरे होने पर मैं बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से, मेरे सभी बैंक साथियों की तरफ से, सहयोगियों की तरफ से शुभकामनाएं देता हूं कला भवन को। और एक बात कहना चाहता हूं कि बैंक ऑफ बड़ौदा, बड़ौदा जो है नगरी, बैंक ऑफ बड़ौदा की जन्मस्थली है। जब भी बैंक ऑफ बड़ौदा का नाम कहीं भी लिया जाता है, देश में हो या विदेशों में हो, तो इस शहर का नाम जरूर आता है और बड़ौदा वासी स्पेशली उस पर गर्व करते हैं, ये हमें मालूम है। हमारे संस्थापक सर सयाजीराव गायकवाड़ जी ने 2 पौधे लगाए। सबसे पहले MS यूनिवर्सिटी, उसके बाद बैंक ऑफ बड़ौदा का पौधा लगाया। दोनों संस्थाएं आज बट वृक्ष का रूप धारण कर चुकी हैं और बहुत ख्याति प्राप्त कर चुकी हैं। ये शायद बड़ौदा
जो नगरी है, ये पुण्य भूमि है। इसी का सौभाग्य है कि बैंक ऑफ बड़ौदा आज सभी पब्लिक सेक्टर बैंक्स में से अग्रणी बैंक है। हम लोग हमेशा बड़ौदा में जितनी भी जो भी हमारे कॉरपोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी के कोई भी कार्य होंगे, बैंक ऑफ बड़ौदा का उसमें सहयोग जरूर रहेगा। और हम लोग अपने आप को धन्य समझते हैं कि हम ऐसे कामों में बड़ौदा नगरी में जो हो रहे हों उसमें हम अपने आप को जोड़ सके। इसके साथ ही मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा और अंत में सभी लोगों का बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद डीडी सिंगला जी, जनरल मैनेजर ऑपरेशंस एंड सर्विसेज, हेड ऑफिस, बैंक ऑफ बड़ौदा। अब हमारे इस कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री जगदीश मित्तल जी, वाइस चेयरमैन अग्रोहा मेडिकल कॉलेज, मैं उनसे विनती करता हूं कि वे यहां उपस्थित होकर हमको मार्गदर्शित करें। धन्यवाद। इस सभागार में उपस्थित काव्य प्रेमियों, अभी हमारे 3 महानुभावों ने अपने अपने उद्गार व्यक्त किए। महाराजा सयाजी राव के द्वारा ये जो विश्वविद्यालय प्रारंभ किया गया और देशभक्ति की एक ज्वाला जहां तब से लेकर आज तक जल रही है, और उस परंपरा को बनाए रखने के लिए शिक्षा के साथ साथ संस्कार की मशाल लेकर के जो लोग चल रहे हैं, मैं उनके लिए कहना चाहूंगा, नए घर में चीजें पुरानी अब कौन रखता है, नए घर में चीजें पुरानी अब कौन रखता है, परिंदों के लिए कुंडों में पानी अब कौन रखता है। ये तो आप हैं योगेश जी जो संभाले हैं गिरती दीवारों को, ये तो आप हैं संभाले हैं गिरती दीवारों को, वरना सलीके से बुजुर्गों की निशानी अब कौन रखता है। वास्तव में शिक्षा के साथ आज संस्कारों की बहुत आवश्यकता है और उस बात को महाराजा सयाजी राव की परंपरा को आप लोग संभाले हुए हैं। और साथ ही कहना चाहूंगा, कुछ चलते पग चिन्हों पर आज एक नए पग चिन्ह कवि सम्मेलन के रूप में यहाँ पर स्थापित किए जा रहे हैं। ये परंपरा आगे भी चलती रहे। कुछ चलते पग चिन्हों पर कुछ पग चिन्ह बनाते हैं, कुछ चलते पग चिन्हों पर कुछ पग चिन्ह बनाते हैं, पग चिन्ह बनाने वाले ही दुनिया में पूजे जाते हैं। मैं इस विश्वविद्यालय में प्री कन्वोकेशन के कार्यक्रम पर पहले आया था। गुजरात मेरे लिए थोड़ा सा अपरिचित था, परंतु योगेश जी ने धीरे धीरे यहाँ के कार्यक्रमों में अभी दूसरी बार आमंत्रित करके कुछ ऐसा हो गया कि यहाँ के लोग कहीं बहुत निकट हो गए हैं। हिचकते हुए मिले थे जिन लोगों से, हिचकते हुए मिले थे जिन लोगों से, क्या पता था वही कल जिंदगी के मायने बन जाएंगे। जिंदगी में कुछ याद रहे ना रहे, जिंदगी में कुछ याद रहे ना रहे, आप सब बहुत याद आएंगे, आप सब बहुत याद आएंगे। आज के इस कार्यक्रम को रंगीन बनाने के लिए कवि बहुत दूर दूर से आपके मध्य में आए हैं, जिन लोगों को आपने टीवी पर कभी देखा होगा, सुना होगा, आज बिल्कुल लाइव आपके सामने उपस्थित हैं। मैं उन सब का भी अभिनंदन करता हूं और बैंक ऑफ बड़ौदा जिसने इस कार्यक्रम को अपना सहयोग प्रदान किया
और कला भवन के 125वें वर्ष का ये निमित्त बना पांचाल जी को भी और उनकी सब टीम को मैं अपनी तरफ से शुभकामनाएं देता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर जी। कहते हैं जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। आकाश के मंच से रवि अस्त हो रहा है और मंच के आकाश पर इतने सारे कवि उदित हो रहे हैं। उनके बीच मेरा अब कोई काम नहीं है, मैं आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद। नमस्कार। आप लोगों का कवियों की ओर से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज के कवि सम्मेलन के रोल मॉडल सरदार और मैडम दोनों साथ साथ बैठे हैं। मेरी बात तो कुछ लोग कल तक समझेंगे मैं क्या बोलकर गया था, क्योंकि मामला ट्यूबलाइट का होता है और भगवान ने किसी को 5 वाट की चाक लगाई है, किसी को 10 वाट की, किसी को 20 वाट की। मैं तो हरियाणा का हूं और आप गुजरात के हैं। हरियाणा वालों को और गुजरात वालों को चौक लगाना ही भूल गए, तो हमारा काम बिना चौक के ही चल रहा है। बहुत अच्छा है। आप सब, मैं देख रहा हूं दूर तक कला भवन खचाखच भरा हुआ है। पंचाल साहब, आपने अद्भुत काम किया है। कला को और इंजीनियरिंग को साथ साथ जोड़ दिया है, पर जब आपने जोड़ा तो कवियों को भूल गए आप। आज आपने याद किया है पुरानी गलती को। हाँ, अब गुजरात के लोग सबको याद कर रहे हैं, सब जगह जा रहे हैं, क्योंकि हिंदुस्तान पे जब राज करना होता तो सबको मनाना पड़ता है। हम तो आपके साथ हैं। आप बहुत बढ़िया लोग हैं सबके सब, और मैं देख रहा हूं हर बात पे जो ठहाके लग रहे हैं, आप सब एक्सपोर्ट क्वालिटी के हैं। मैं तो मूलतः, जैसे कि मैंने बताया कि मैं भिवानी है, एक छोटा सा शहर हरियाणा में, वहां का रहने वाला हूं। हमारे यहाँ अध्यापक पढ़ा रहे हैं कक्षा में, बोले एक्सपोर्ट इंपोर्ट का मतलब बताओ। तो हमारे यहाँ का बच्चा बड़ा होशियार, बोला गुरुजी बहुत आसान है। बोला बता। बोला गुरुजी इंपोर्ट मतलब सोनिया, और बोला एक्सपोर्ट, बोला जी सानिया। ऐसा भी हो सकता है। आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आपका मनुष्य के रूप में जन्म हुआ। 84 लाख योनियां थी, कुछ भी बन सकते थे, पर मनुष्य बने, यह आपका भाग्य है। और भाग्यशाली है कि भारत में पैदा हुए। अरे भाई, कहीं भी हो सकते थे, अपने हाथ में थोड़े था। क्योंकि दुनिया में कोई देश भी मां नहीं है। हमने कभी सुना क्या अमेरिका माता की जय? हमने कभी सुना क्या जापान चाचा की जय? हमने कभी सुना क्या पाकिस्तान ताऊ की जय? संभव नहीं। दुनिया कहती है भारत माता की जय। तो आप भारत में पैदा हो गए, और भारत में भी गुजरात। अरे भाई, देश को आजादी आप लोगों ने दिलाई महात्मा गांधी के रूप में, देश को दिशा आप लोगों ने दी पटेल के रूप में, देश को आडंबर से मुक्त आपने किया स्वामी दयानंद के रूप में। गुजरात तो गुजरात है, और अब देश को सुधारने का काम भी आप लोग ही करोगे, आप पे भरोसा है। मेरा भाई आया था अरविंद केजरीवाल, 2-3 दिन घूम के गया है। हाँ, अच्छा किया आप लोगों ने, मेरे पास समाचार पहुंचे हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया। सच में कमाल कर दिया आप लोगों ने।
तो आप भाग्यशाली गुजरात में पैदा, गुजरात में भी वडोदरा, क्या बात है। एक संस्था 108 साल पुरानी, बैंक वाले, एक 125 साल पुराने विश्वविद्यालय वाले, हमारे भी कवि हैं ये 100 साल पुराना। भगवान के घर देर भी और अंधेर भी है। एक बात समझ लो, हम आज 7 कवि हैं मंच पर, या यूं कहूं कि 6 कवि हैं और 1 कवित्री हैं, और मौसम की बात करूं तो 6 बसंत हैं और 1 बसंती है, और इसको यूं भी कहा जा सकता है 5 बसंत हैं, 1 बसंती और 1 पतझड़ है, क्योंकि 10 साल पूरे होकर पतझड़ी आएगा। अब क्या है, कब तक बसंत रहेगा। तो आप भाग्यशाली हैं, वडोदरा में पैदा हुए, और भाग्यशाली हैं कि आप इस विश्वविद्यालय में बैठे हैं, यह भी आपका भाग्य है, और वहां आप कवि सम्मेलन सुनने आए हैं, यह भी आपका भाग्य है, और आप राजेश चेतन को सुन रहे हैं, यह आपका परम सौभाग्य है। क्यों तुम तो ऐसे आए हो। सरदार जी बड़ा जोरदार व्यक्ति हैं, मिलेंगे बाद में उनसे। प्रोफेसर योगेश सिंह हमारे जो वीसी साहब हैं, उन्होंने 2 लोगों का ही स्वागत किया, एक मंच का सबसे लंबे वाले का और एक सबसे छोटे वाले का। सबसे सुदीप भोला सबसे लंबा मंच पे और सबसे छोटा ये। आपने 4 फुट का सरदार कभी नहीं देखा होगा, भाई एक ही पैदा हुआ है। आइए दोस्तों, ये बातें बहुत करेंगे हम लोग, मैं कवियों का परिचय भी दूंगा आप लोगों से। इससे पहले एक परंपरा है माँ की वंदना की। आइए माँ की वंदना करते हैं, और सरस्वती माता का ये मंच है, हम कला भवन में हैं। आइए पूरे सदन को मंदिर बनाइएगा, माँ की वंदना करने के लिए ध्यान मगन होइएगा और माँ की प्रार्थना करते हैं। माँ को बेटियां ज्यादा प्रिय हैं, बेटे थोड़े कम प्रिय होते हैं, तो उसका भी कारण बाद में बताऊंगा। तो मैं एक बेटी को आह्वान करता हूं कि वे आकर माँ की वंदना करें, और आप सबसे एक ही मेरी गुजारिश है, आप सब तालियां बजा दीजिए और बुलाइएगा उर्मिला उर्मी जी को वंदना करने। समस्त कलाओं की अधीश्वरी, मानव मन में अंतर्निहित सौंदर्य की अधिष्ठात्री, सरगम के 7 सुरों की सम्राज्ञी माँ बागीश्वरी के चरणों में वंदना के अक्षर कुसुम समर्पित कर रही हूँ। सुनिएगा। जय वाणी जय वीणा पाणिनी, जय वाणी जय वीणा पाणिनी, दया करो हम पर वरदायिनी, जय वाणी जय वीणा पाणिनी, जय वाणी जय वीणा पाणिनी। अंधकार को दूर भगाओ, अंतर मन के दीप जलाओ, अंधकार को दूर भगाओ, अंतर मन के दीप जलाओ, प्रज्ञा का वरदान हमें दो, मानवता की सुधा पिलाओ, प्रज्ञा का वरदान हमें दो, मानवता की सुधा पिलाओ, वीणा पुस्तक ज्ञान धारिणी, जय वाणी जय वीणा पाणिनी, जय वाणी जय वीणा पाणिनी। और मंच के अपनी सभी साथियों की तरफ से प्रार्थना करती हूँ। बुद्धि ज्ञान की तुम हो दात्री, और हम हैं पथ भूले यात्री, बुद्धि ज्ञान की तुम हो दात्री, और हम हैं पथ भूले यात्री, सत्यम का मोहक स्वरूप तुम, सुंदरता की तुम निर्मात्री, सत्यम का मोहक स्वरूप तुम, सुंदरता की तुम निर्मात्री, शिवम तुम्ही से जगत तारिणी,
जय वाणी जय वीणा पाणिनी, जय वाणी जय वीणा पाणिनी, दया करो हम पर वरदायिनी, जय वाणी जय वीणा पाणिनी। बहुत बहुत साधुवाद उर्मिला जी को। आइए इस कार्यक्रम को आरंभ करते हैं। पत्रकार भाई भी बड़ी संख्या में यहाँ बैठे हैं, मैं उनको भी अभिनंदन करता हूँ। पत्रकार जो हैं वो हमारे रिश्ते में साधु लगते हैं, क्योंकि हम भी कलम के सिपाही हैं, वो भी कलम के सिपाही हैं। अंतर इतना ही है कि हम सरस्वती के बेटे हैं और वो सब नारद के बेटे हैं। तो हमसे तो कोई डरता नहीं, उनसे सब डरते हैं। मैं उनको भी प्रणाम करता हूं और धीरे धीरे संख्या बढ़ती जा रही है। भरोसा है कि अंत तक आते आते सब सीट भर जाएंगे। और मैं कहां से शुरू करूं, देखता हूं। 2-3 सूचनाओं की ओर ध्यान देंगे तब तक आप। एक तो मोबाइल फोन अपना आप एक बार जेब से निकाल लेंगे और वो बीच में कहीं डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। और मेरी प्रार्थना यह है कि जो पत्नी के साथ यहाँ बैठे हैं वो मोबाइल फोन को कंप्लीट स्विच ऑफ कर दें। जब बीबी यहाँ बैठी है तो फोन किसका आएगा? इस समय एक ही फोन आता है, बीबी का ही पूछती है कहाँ हो। और जिनकी बीबी घर पे है वो उसको वाइब्रेटर पे वाइब्रेशन में ले जाएं फोन को। और जिनकी एंगेजमेंट हुई है, रिश्ता हुआ है, संबंध हुआ है, सगाई हुई है, वो वॉल्यूम फुल कर दें, हम भी सुने की बात क्या हो रही है। उसने मानना तो है नहीं। तो आप जिस जिस कैटेगरी में आते हैं अपना अपना काम कर लीजिएगा। एंड दूसरी बात, कवियों की एक ही भूख है कि आप तालियां बजाते रहिएगा, जिससे कि कार्यक्रम ऊंचाई पे जाता रहे। उसमें आप कोई कमी छोड़ेंगे नहीं, मुझे भरोसा है। एक बार तालियां बजा के बता दो आप कितना दमदार लोग हैं। वाह वाह वाह, कमाल है। पीछे वाले लोग पता नहीं क्यों खामोश हैं, मुझे नहीं पता क्या रीजन है। मैं बताना चाहता हूं आप लोगों को, पीछे वालों को, आजकल हिंदुस्तान में बाबा लोग बहुत हैं। एक है निर्मल बाबा, डोसा खाओ कृपा आ जाएगी, ढोकला खाओ कृपा आ जाएगी, थेपला खाओ कृपा आ जाएगी। ये नाम मैंने यहां के सीखे हैं। तो कोई चला गया बाबा के दरबार में, बोला बाबा बुरा हाल है, बीबी भाग गई, बच्चे फेल हो गए हैं, दुकानदारी बंद हो गई है, क्या करूं? बाबा ने ध्यान लगाया। अरे बोले कवि सम्मेलन में गए थे क्या? बोला हाँ बाबा गया था। चेतन जी आए थे क्या? हाँ जी राजेश चेतन जी आए थे। उनकी कविता पर ताली बजाई थी क्या? नहीं बाबा ताली तो नहीं बजाई। अरे बोला तेरी कृपा वही रुकी हुई है। तो आज मैं चेतन बाबा हूं, जो ताली नहीं बजाएंगे उनकी कृपा रुक जाएगी। तो सारे मिलकर तालियां बजाते रहना। आइए इस कवि सम्मेलन को आरंभ करता हूं। अब संकट यह है कि पहले किसको बुलाऊं भाई? मैं उधर देखता हूं, वो उधर देखते हैं। किसी कवि ने कहा कि उठा के मीना जो मैंने पूछा किधर से पहले, किधर से पहले। मीना समझते हैं? एक ऐसा खास पदार्थ जो आपके यहां बंद है। यहां से बंद है, यहां से उठा के मीना जो मैंने पूछा किधर से पहले, किधर से पहले, तो हर तरफ से आवाज आई इधर से पहले, इधर से पहले। उठा के जूता जो मैंने पूछा किधर से पहले, किधर से पहले, तो हर तरफ से आवाज आई उधर से पहले, उधर से। यही हालत ऐसी यहां रखी है। पहले किसको बुलाऊं? आइए किसी को तो बुलाना ही पड़ेगा। मैं इस मंच का जो सबसे युवा हस्ताक्षर है, सबसे नौजवान कवि है, मैं उसको चाहता हूं कि वहां से शुरू करें। और वह मुंबई से आया है। मेरे भाई अरविंद केजरीवाल भी मुंबई में है, तो मैं चाहता हूं वहीं से शुरू किया जाए। वो क्या संदेश लेके आ रहा है। बहुत अद्भुत कवि है, बहुत युवा कवि है। और 2 पंक्तियां मुझे नरेश सांडिल्य की उस कवि के लिए याद आ गई कि छोटा हूं तो क्या हुआ,
छोटा हूं तो क्या हुआ, जैसे आंसू एक, सागर जैसा स्वाद है, तू चक्कर तो देख। ऐसा एक नया हस्ताक्षर जगदीश मित्तल जी यहां पर बैठे हैं, दस्तक नई पीढ़ी के नाम से युवा कवियों की, वो भी एक कला भवन चलाते हैं, उसमें कवि तैयार करते हैं। ऐसे अनेकों अनेकों कवि, मैं भी आपके सामने जो संचालन कर रहा हूं जगदीश जी की वजह से हूं। कुछ भी अच्छा लगे तो सब मेरा है, कुछ भी बुरा लगे तो जगदीश जी सामने बैठे हैं, उनसे निपटना सारी गलती उनकी है। आइए फिलहाल हम सुनते हैं रोहित शर्मा को मुंबई से। एक बार तालियां बजाएं रोहित के लिए।